we have seen the final keyword also. So basically, we have completed your inheritance concepts, right? So all the inheritance concepts we have completed, and the practical part is remaining from the aggregation and composition. So we are going to do some practical. As I have already done one, I will show you how to do it. Okay. Before that, we will just revise, quickly revise the concepts. That is, association concept has a relationship where we have seen there are two separate forms of it, that is composition and aggregation. So in a has a relationship, association is the main concept, that is has a relationship, and in this aggregation is a part of it and composition is a part of aggregation concepts, right? So here in aggregation we have seen that it is unidirectional association, one way relationship where the both entities can survive individually, and that means there is no much dependency on each other. Okay, so for example, college has student and college has teacher, right? Same, it is a form of weak association. Why? Because the students can survive without college, teacher can survive without college also. So all these entities are basically individually they can survive, right? So same thing we are going to perform in this example. I have already performed that example. I will show you that. Okay. So in the aggregation concept, same thing I have created. First one is student. Okay. Basic student class we have created. It is also known as Pojo class. In the Pojo class, that is a plain Java object class. It is also known as Java bin class. So in this student class, we are only creating few members of it. That is ID, name, and address. The constructor, parameterized constructor, and getter setter. As these members are private members, I have generated getter and setter methods. Okay. And the toString method also, just to view the string representation of student object. Okay. Then same manner, जैसे यहाँ पे कॉलेज था वैसे ही मैंने यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट करके लिया है, ठीक है, एंड डिपार्टमेंट करके लिया है. सो मेरा रिलेशनशिप ऐसा है कि डिपार्टमेंट हैज मल्टीपल स्टूडेंट्स. ठीक है, जब हम मल्टीपल स्टूडेंट्स बोलते हैं, क्योंकि एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, राइट. जैसे एग्जांपल डिपार्टमेंट ले लो कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, उसमें अलग अलग डिविजन्स भी हो सकते हैं. सो अगर आपको ये हैज अ रिलेशनशिप, यहाँ पे हैज अ रिलेशनशिप है, ठीक है, तो हैज अ रिलेशनशिप जब डेवलप करना है, जब इम्प्लीमेंट करना है, देन यू हैव टू यूज the object of that particular class in the say in the class where you want to create a relationship. जहां पे आपको रिलेशनशिप, जिसके साथ रिलेशनशिप क्रिएट करना है, वहां पे दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है. तो यहाँ पे मल्टीपल स्टूडेंट्स है, दैट इज वाई मैंने यहाँ पे एरे ऑफ स्टूडेंट क्लास लिया है, सो दैट हम यहाँ पे वन डिपार्टमेंट मेनी स्टूडेंट्स का रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं. सर रिलेशनशिप इज वन टू मेनी. ठीक है, सो अगर वन टू मेनी रिलेशनशिप क्रिएट करना है तो आप इस तरीके से एरे क्रिएट कर सकते हो. वन टू वन रिलेशनशिप क्रिएट करना है तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो रादर देन क्रिएटिंग एरे. सेम दिस इज ऑल्सो पोजो क्लास. जैसे नॉर्मल हमने आईडी, डिपार्टमेंट नेम, मेंबर्स लिखे हैं यहाँ पे, एंड कंस्ट्रक्टर्स जनरेट किए हैं विद द डिफॉल्ट नेम्स. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैंने स्टूडेंट्स एरे को इनिशियलाइज किया है विद 10 साइज. गेटर सेटर मेथड्स रहेंगे. यहाँ पे एरेस के लिए भी गेटर सेटर मेथड हम सेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. तो इस तरीके से वो सेटर मेथड्स एंड गेटर मेथड्स जनरेट होके जो एरे के लिए हम यूज कर रहे हैं. सो बेसिकली हम यहाँ पे एक रिलेशनशिप के तौर पे दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट होल्ड करें. जनरली हम ऑब्जेक्ट डायरेक्टली कहाँ पे क्रिएट करते हैं, मेन मेथड में क्रिएट करते हैं, एंड वी सेट द वैल्यूज एंड यूज इट, राइट. सो यहाँ पे डिपार्टमेंट में हमें दूसरा ऑब्जेक्ट चाहिए. डिपार्टमेंट हैज अ स्टूडेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट हैज अ स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें इस तरीके से क्रिएट करना होता है. ठीक है, सो सेम तरीके से इंस्टीट्यूट, जैसे कि कॉलेज है,
जैसे मैंने इंस्टीट्यूट लिया है, इंस्टीट्यूट हैज मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, इंस्टीट्यूट हैज मल्टीपल डिपार्टमेंट्स। यहाँ पे भी वन टू मेनी रिलेशनशिप हम क्रिएट करेंगे। सो वन टू मेनी रिलेशनशिप, इंस्टीट्यूट हैज मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, ये है। इसकी वजह से डिपार्टमेंट क्लास का भी हमने एरे क्रिएट किया है एक यहाँ पे, एंड इसको भी हमने बेसिक पोजो क्लास के जैसे कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट किए हैं। कंस्ट्रक्टर में भी हमने डिपार्टमेंट्स का एरे सेट किया है, एंड गेटर सेटर मेथड्स जनरेट किए हैं, एंड टू स्ट्रिंग मेथड जनरेट किया है। ठीक है, सो ये सब कुछ एज इट इज है। नाउ हियर यू कैन सी वन मेथड वी हैव यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग द कंटेंट्स ऑफ एरे। ठीक है, डिपार्टमेंट्स के इंफॉर्मेशन सेव करने के लिए, शो करने के लिए यहाँ पे हमने एरेज क्लास का यूज किया है। एरेज हैज मेथड नेम टू स्ट्रिंग मेथड। ठीक है, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, जहां पे हम एरेज का कन्वर्जन करके उसका ऑब्जेक्ट्स जो है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट होने के बाद देख सकते हैं। ठीक है, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग मेथड हमने यहाँ पे यूज किया है। ये टू स्ट्रिंग मेथड जनरेट किया हुआ है, जैसे कैसे जनरेट करना है मैंने ऑलरेडी सारे क्लासेस में दिखाया है, तो आपको वो अभी तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ ये इंस्टीट्यूट क्लास में डिपार्टमेंट का रिलेशनशिप हमने क्रिएट किया। इंस्टीट्यूट हैज मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट हैज मल्टीपल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे टेस्टिंग के लिए तीन अलग अलग एरेज बनाए। एक स्टूडेंट का एरे बनाया, एक डिपार्टमेंट्स का एरे बनाया है, एंड एक इंस्टीट्यूट का एरे बनाया है। या फिर आप एक सिंगल इंस्टीट्यूट भी ले सकते हो, क्योंकि एक ही इसमें हमें करना है। सिंगल इंस्टीट्यूट टू मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, एंड मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में मल्टीपल स्टूडेंट्स है, ये दिखाना है। ठीक है, तो आप फॉर लूप लेके ऐसे इस तरीके से भी सेव कर सकते हो। अभी ये मैंने रैंडमली जनरेट किया हुआ कोड है। ठीक है, मतलब हमें एंटर नहीं करना है, यूजर एंटर करने का कोड आपको पता है कैसे करना होता है, वो आप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली डेटा सेट किया है जस्ट टू show you the implementation of this whole example। ठीक है, तो स्टूडेंट्स का मैंने 3 स्टूडेंट्स का एरे बनाया है। ठीक है, उसको हमने इनिशियलाइज किया ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट को, हर एक एरे में जितने भी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे उन सबको, एरे को इनिशियलाइजेशन प्रोसेस होने के बाद हमने एक एक एलिमेंट सेट किया है। पहले तो आईडी सेट किया, वी आर यूजिंग सेटर मेथड्स हियर। सेटर मेथड्स क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि आईडी, नेम, एड्रेस, ये सारे मेंबर्स जो है वो प्राइवेट है। ठीक है, हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, दैट इज वाई उसको एक्सेस करने के लिए हमें सेट मेथड्स यूज करने की जरूरत है। तो ये हमने सेट मेथड्स किया, जो भी आई की वैल्यू होगी उसको मैंने एज अ आईडी सेट किया है। नेम के लिए मैंने आई वेरिएबल को ही कैरेक्टर में कन्वर्ट किया है, ये हमने टाइप कास्टिंग में देखा है। ठीक है, एंड सिर्फ अंडरस्कोर करके उसको एक वैल्यू ऐड किया, दैट इज नेम, जस्ट टू शो यू द यूज ऑफ। और टेस्टिंग के लिए आप यहाँ पे एक्चुअल डेटा भी ले सकते हो। एंड वी आर डिस्प्लेइंग द स्टूडेंट्स लिस्ट। आफ्टर स्टूडेंट्स वी आर क्रिएटिंग डिपार्टमेंट्स। 2 डिपार्टमेंट्स मैंने क्रिएट किए हैं, डायरेक्टली क्रिएट किया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। डिपार्टमेंट मैकेनिकल डिपार्टमेंट, जिसको मैंने एरे में कंस्ट्रक्टर जो है डिपार्टमेंट का, वहां पे जो हमने स्टूडेंट्स का एरे बनाया है वो पास किया है। या फिर सेकेंड वे इस तरीके से भी है, ये डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट्स में आप डिपार्टमेंट का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको भी स्टूडेंट्स सेट कर सकते हो। डिपार्टमेंट के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हमने ये सेट नहीं किया हुआ। ठीक है, सिर्फ आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम दिया हुआ है डिफॉल्ट वैल्यू, एंड स्टूडेंट्स एरे को हमने इनिशियलाइज किया है। दैट इज वाई जब मैंने यहाँ पे सेम सेट ऑफ स्टूडेंट्स शो किए हैं, जस्ट टू शो यू कि आप इन दोनों में से कोई भी तरीके से वैल्यूज सेट कर सकते हो। उसके बाद हमने डिपार्टमेंट को डिस्प्ले किया, सो डिपार्टमेंट के साथ आपके स्टूडेंट्स भी डिस्प्ले हो जाएंगे। एक इंस्टीट्यूट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, एंड डायरेक्टली सेट मेथड यूज करके सेट डिपार्टमेंट करके जो डिपार्टमेंट्स का एरे हमने बनाया था उसको हमने सेट किया, एंड वी आर डिस्प्लेइंग द इंस्टीट्यूट हियर। तो ये इस तरीके से आपको करना होता है कि जब भी आप हैज अ रिलेशनशिप डेवलप करते हो एग्रीगेशन फॉर्म में, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ऑब्जेक्ट्स तो आप बनाते ही हो, बट एग्जीक्यूशन कैसे करना है, तो बेसिकली एग्जीक्यूशन इस तरीके से आप कर सकते हो।
हाँ, यहाँ पे सारे वन टू मेनी एसोसिएशनशिप है या फिर रिलेशनशिप है। ठीक है, वन टू अगर वन टू वन ही होगा, वन टू वन होगा तो आपको सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है ना, एक ही वैल्यू सेट करनी है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। ठीक है, सो इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ आपको। रन एज जावा एप्लीकेशन। तो हैव ऑलरेडी सेट द वैल्यूज, डिफॉल्ट वैल्यूज। ठीक है, तो उसके हिसाब से आईडी 0 है। जो कैरेक्टर है आय का वो यहाँ पे नहीं आया है, बट इट्स ओके। जो भी वैल्यूज आएंगे आप सेट कर सकते हो। दीज आर 3 स्टूडेंट्स डेटा वी आर गेटिंग। उसके बाद हमने 2 डिपार्टमेंट्स के वैल्यूज सेट किए हैं। ठीक है, तो ये 2 डिपार्टमेंट्स के वैल्यूज है, उसके साथ साथ आपके स्टूडेंट्स भी सेट हो गए हैं, तो वो स्टूडेंट्स का डेटा भी यहाँ पे दिखाए। 3 स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट के तीनों वैल्यूज आपको दिखेंगे। ठीक है, एंड इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट में मैंने ये वैल्यूज दिए है, डिफॉल्ट वैल्यूज। उसके साथ ये डिपार्टमेंट डिस्कनेक्ट ड्यू टू नेटवर्क इशू। ओके, ओके ओके मैम। सो द नेक्स्ट कंसेप्ट इज कंपोजिशन। जहां पे हमने देखा था कि कंपोजिशन एक रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म है एग्रीगेशन का। ठीक है, तो एग्रीगेशन का कंसेप्टेड रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म है, मतलब जितने भी एंटिटीज रहेंगे वो एंटिटीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, हाईली डिपेंडेंट रहेंगे। ये हमेशा पार्ट ऑफ रिलेशनशिप होता है। यहाँ पे आप बनाओगे बोथ एंटिटीज, मतलब हम यहाँ पे 2 एंटिटीज के हिसाब से बता रही हूँ मैं। तो जितने भी एंटिटीज रहेंगे वहां पे एक डिपेंडेंट रिलेशनशिप होगा। पूरा मतलब क्या कि एक के अगर एक चला गया तो दूसरे का कोई मतलब नहीं होगा। वन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द अदर एंटिटी। ठीक है, एग्जाम्पल, व्हीकल हैज इंजन as well as vehicle has tire. Without engine, vehicle cannot survive. Without tire, vehicle cannot survive. ठीक है, so vehicle को मतलब तभी आएगा जब उसमें इंजन होगा, जब उसमें टायर होगा। अगर ये दोनों ही नहीं रहेंगे तो व्हीकल का वो सिंगल एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है। उसका खुद का कोई इशू, मतलब ये ही नहीं है। कुछ भी प्रॉपर नहीं रहेगा, उसको कुछ मतलब ही नहीं रहेगा आप व्हीकल बनाओगे तो, राइट। तो उसमें इंजन मस्ट है, टायर भी मस्ट है। तो यही पार्ट हम करेंगे प्रैक्टिकली। कंपोजिशन इज ऑलवेज अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन। इसको हम देखते हैं कैसे किया है। तो कंपोजिशन में मैंने लिया है एक बुक क्लास, ये भी सिंपल पोजो क्लास है, जहां पे 3 मेंबर्स लिए, बुक आईडी, बुक नेम एंड प्राइस, एंड गेटा सेटा मेथड्स एंड टू स्ट्रिंग मेथड को जनरेट किया है। दिस इज द सिंपल पोजो क्लास। आई हैव क्रिएटेड लाइब्रेरी क्लास। ठीक है, नाउ दिस लाइब्रेरी क्लास, यहाँ पे एसोसिएशन मतलब रिलेशनशिप क्या है कि लाइब्रेरी हैज मल्टीपल बुक्स। ठीक है, अभी हमने जो देखा था वही है, लाइब्रेरी हैज मल्टीपल बुक्स। तो बुक्स का मैंने एक एरे क्रिएट किया, आई हैव स्टोर्ड दैट एरे हियर इन लाइब्रेरी क्लास। एक सिंगल है, लाइब्रेरी में सिर्फ बुक्स ही रहेंगे, बाकी आपको ऐड करना है तो मेंबर्स आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, सो उसके हिसाब से कंस्ट्रक्टर्स जनरेट किए हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में मैंने उसको इनिशियलाइज किया है विथ साइज 10। कंस्ट्रक्टर जनरेट किया है, टू स्ट्रिंग जनरेट किया है। दैट्स द ओनली थिंग। लाइब्रेरी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट बुक्स। अगर बुक्स ही नहीं रहेंगे तो लाइब्रेरी को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लाइब्रेरी में दूसरा क्या रहेगा,
अगर बुक्स की लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी कैनॉट सर्वाइव विदाउट बुक्स। तो दैट इज वाई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हैज अ रिलेशनशिप ही है, बट ये कंपोजिशन पार्ट है जिसमें लाइब्रेरी सिंगल एंटिटी सर्वाइव नहीं कर सकती विदाउट बुक्स। ठीक है, इसको टेस्ट करने के लिए भी सेम तरीके से ऑब्जेक्ट बनाया है, 3 बुक्स के ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं एंड स्टोर किए हैं एरे में, एंड सेट बुक मेथड से मैंने सेट किए हैं ये सारे एरेस के एलिमेंट्स इस लाइब्रेरी। ओके, नाउ यू कैन व्यू द बुक्स इन द लाइब्रेरी डायरेक्टली, आप डायरेक्टली से व्यू कर सकते हो। देखो सारे पूरे जितने भी बुक्स का एरे था वो सारा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एज इट इज सेट हो लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स हैं। तो दिस इज अ कंपोजिशन जहां पे दूसरी एंटिटी सरवाइव नहीं करेगी विदाउट वन एंटिटी। ठीक है, सो उसमें स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, लाइब्रेरी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट बुक्स, बुक इंडिविजुअल सर्वाइव कर सकता है, बुक का कोई इश्यू नहीं है, के साथ बुक का एक, दिस इज द कंपोजिशन पार्ट। एनी डाउट इन दिस, अंडरस्टूड both concepts? Yes, ma'am. Okay, then we have seen this final keyword also. So final keyword is a non-access modifier and we can apply it to variable method and class to restrict the user in Java. ठीक है, तो इन तीनों का हम एक एग्जांपल करके देखेंगे। So here I am creating one package, final keyword, and this final keyword first हम देखने वाले, मैं डायरेक्टली दिखाती हूँ फाइनल वेरिएबल का। ठीक है, इन दिस फाइनल वेरिएबल हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना है, सपोज दैट वेरिएबल इज, जो हमें कांस्टेंट रखना है। अभी कांस्टेंट में क्या है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम पाई की वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है, कभी चेंज नहीं होती, राइट। सो उस जैसे कोई भी कांस्टेंट है उसके लिए आप उस पर्टिकुलर वेरिएबल को फाइनल बना सकते हो। तो डबल पाई मैंने लिया है एंड उसको वैल्यू दी है 3.14। अभी ये नॉर्मल पाई वेरिएबल है, अगर आप इस पाई वेरिएबल की वैल्यू चेंज करोगे तो वो चेंज होगी, राइट, इट इज गेटिंग चेंज्ड। व्हाई, आप कभी भी इसको चेंज कर सकते हो, व्हाई, बिकॉज ये एक नॉर्मल वेरिएबल है, बट मुझे इसको रेस्ट्रिक्ट करना है कि इस वेरिएबल को कोई कभी चेंज ना करे, ओनली वन टाइम अलोकेशन ऑफ मेमोरी एंड वन टाइम वैल्यू सेट ही होगा, उसमें वैल्यू एक ही बार सेट होता है, कभी भी बाद में चेंज नहीं होता, ऐसे मुझे उसको कांस्टेंट बनाना है। ठीक है, तो कांस्टेंट बनाना है, कांस्टेंट बनाना है तो आप इसको यूज करो फाइनल कीवर्ड। ठीक है, सो इसको आपको फाइनल कीवर्ड इस तरीके से यूज करना है, आपको एक्सेस स्पेसिफायर से पहले यूज करना है। ठीक है, तो ये पाई वेरिएबल की वैल्यू सेट हो गई, देन यू कैन सी हियर, आपको यहाँ पे एरर दिखाई देगा, क्योंकि जब आप फाइनल वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, उसको एक ही टाइम हम वैल्यू सेट कर सकते हैं, वो भी आपको सेट करनी होती है एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इटसेल्फ। सपोज आपने सोचा कि इसको मैं हटा देती हूँ एंड डिक्लेयर करती हूँ, सिर्फ बाद में उसको वैल्यू सेट करूंगी, सो इमीडिएट वैल्यू सेटिंग इज अलाउड, आप उसको एक ही बार वैल्यू सेट कर सकते हो, कभी भी करो, ठीक है, बट उसके बाद उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऑलवेज रिकमेंडेड कि वैल्यू जो है आप जब वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तभी सेट करो, सो दैट उसको चेंज करने का कोई मतलब नहीं रहेगा, बाद में आपने कहीं पे बीच में अगर सेट किया वैल्यू तो वो समझने के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। अदर थिंग इज, जब भी आप कांस्टेंट डिक्लेयर करते हो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू यूज कैपिटल केस वर्ड्स। ठीक है, कैपिटल केस में ही आपको नेम्स देने हैं, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई दैट वेरिएबल इमीडिएटली। आपको जब भी आइडेंटिफाई करना है आप उसको इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर सकते हो यूजिंग, बिकॉज वो सारे अपर केस में होंगे। ठीक है, तो एक ये तरीका है। अदर वन इज, जैसे हमने स्टैटिक वेरिएबल देखा, अभी ये क्या है, ये फाइनल वेरिएबल जो है ये कांस्टेंट है, बट दिस इज
लोकल वेरिएबल, राइट, इट इज अ लोकल वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये पाई वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है इनसाइड मेन मेथड, ठीक है। सो इट इज बेसिकली अ लोकल वेरिएबल। एंड हमें लोकल वेरिएबल नहीं, हमें डिक्लेयर करना है इंस्टेंस वेरिएबल एज अ इंस्टेंस वेरिएबल, मुझे डिक्लेयर करना है एज अ फाइनल, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल एज कांस्टेंट, ठीक है। तो इंस्टेंस वेरिएबल भी आप एज अ कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हो। इंस्टेंस वेरिएबल्स कैसे होते हैं? क्लास में जो भी वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करते हो उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, राइट। सो आपको एक स्ट्रिंग वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया, सपोज इंस्टीट्यूट। अभी वेरिएबल ने मुझे कांस्टेंट डिक्लेयर करना है तो हमेशा यूज कैपिटल वर्ड्स, ठीक है। वेरिएबल नेम जो है वो कैपिटल में होना चाहिए। मैंने नेम दिया स्टू वैली, ओके। अभी इसको मुझे कांस्टेंट बनाना है तो आई कैन सिंपली ऐड फाइनल कीवर्ड विद इट, ठीक है। तो ये इंस्टेंस वेरिएबल भी आपका बन गया फाइनल। बट अगर हम वैल्यू कांस्टेंट ही रख रहे हैं तो इसको इंस्टेंस वेरिएबल बनाने का कोई मतलब नहीं होगा। इंस्टेंस वेरिएबल्स कब बनाते हैं हम? जब उसके वैल्यूज है जो चेंज हो गए, होने वाले हैं, तब हम उसको बना सकते हैं, मतलब बनाते हैं बेसिकली। क्योंकि इस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट करोगे उसमें इंस्टीट्यूट वेरिएबल के लिए सेम ही वैल्यू रहने वाली है, राइट। बट मेमोरी एलोकेशन विल बी डिफरेंट। तो आप मेमोरी क्यों वेस्ट करना चाहते हो, राइट। सो इसके जगह पे आप स्टैटिक वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हो। स्टैटिक, ये सेम वेरिएबल जो है उसको मैं यहाँ पे चेंज करती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया। स्टैटिक वेरिएबल अगर हमने डिक्लेयर किया तो क्या होता है? ये स्टैटिक वेरिएबल एक ही बार मेमोरी एलोकेशन होगा एंड वैल्यू जो है वो चेंज होती है, राइट। आप वैल्यू चेंज कर सकते हो। बट इसी सेम वेरिएबल को मुझे अगर कांस्टेंट बनाना है, मतलब उसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो, ये वैल्यू एज इट इज रखनी है, कांस्टेंट करनी है, तो हम स्टैटिक वेरिएबल को भी फाइनल अप्लाई कर सकते हैं सो दैट वो हमारा स्टैटिक वेरिएबल जो है वो भी आपका एज अ कांस्टेंट वर्क करेगा, ठीक है। सो ये फाइनल आपका जो है वो स्टैटिक वेरिएबल या फिर क्लास वेरिएबल एज कांस्टेंट, ठीक है। तो बेसिकली आप फाइनल कीवर्ड जो है वो कौन से भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। आपको सिर्फ मेथड में करना है, लोकल वेरिएबल को बनाना है तो आप लोकल वेरिएबल को भी बना सकते हो। अगर इंस्टेंस वेरिएबल को बनाना है तो इंस्टेंस वेरिएबल को अगर बनाना है तो ऑलवेज रिकमेंडेड टू यूज द स्टैटिक कीवर्ड विद इट, क्योंकि वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी उसकी। बट हर एक ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेशन इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट वेरिएबल के लिए होगा, तो वो मेमोरी वेस्ट हो जाएगी, राइट। इसकी वजह से इंस्टेंस वेरिएबल की जगह पे आप उसको हमेशा फाइनल स्टैटिक वेरिएबल ही डिक्लेयर कर सकते हो। एंड इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू यूज दिस वेरिएबल नेम इन द कैपिटल केस जस्ट टू आइडेंटिफाई इट क्विकली। आप इसको इमीडिएटली सॉरी क्विकली आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। दिस इज द यूज ऑफ फाइनल कीवर्ड। नाउ वी विल सी द फाइनल मेथड। फाइनल मेथड, सपोज देयर इज अ क्लास पेरेंट, ठीक है। पेरेंट नाम का एक क्लास है। इस क्लास में मैंने एक मेथड लिखी है स्ट्रिंग शो करके, ठीक है। इसमें मैं रिटर्न स्टेटमेंट ऐड करना चाहती हूँ क्योंकि ये मेथड स्ट्रिंग रिटर्न करती है। तो मैं एक यहाँ पे रिटर्न करती हूँ, दिस इज अ मेथड, दिस इज अ मेथड ऑफ पेरेंट क्लास, ठीक है। नॉर्मली अगर इस ये फाइनल मेथड का क्लास है, इस क्लास में मैंने इनहेरिट किया एक स्ट्रिंग्स,
किया पेरेंट क्लास को, ठीक है, पेरेंट क्लास को एक्सटेंड किया। नाउ नॉर्मली जब हम इस तरीके से करते हैं तो आप ये स्ट्रिंग मेथड जो है शो मेथड को आप ओवरराइड कर सकते हो। ओवरराइडिंग कंसेप्ट हमने ऑलरेडी देखा है, राइट? यू कैन ओवरराइड दिस एंड रिटर्न समथिंग, राइट? ये मेथड हम इस तरीके से ओवरराइड कर सकते हैं। सपोज इस पेरेंट क्लास में और एक मेथड है, डबल कैलकुलेट स्क्वायर, एन करके उसको एक इनपुट आ रहा है, ठीक है, एंड आई एम रिटर्निंग एन इंटू एन। अभी इस मेथड को मुझे, इसका इम्प्लीमेंटेशन चेंज नहीं होगा, ठीक है, चाइल्ड में उसका इम्प्लीमेंटेशन चेंज नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर कैलकुलेशन का इम्प्लीमेंटेशन तो एक ही रहता है। तो इसका कोई मतलब नहीं है कि मैं इसको यहाँ पे चाइल्ड क्लास में क्या करूँ, ओवरराइड करूँ, ठीक है। तो मुझे इसको रेस्ट्रिक्ट करना है, ओवरराइडिंग नहीं करवाना है इस मेथड का। अगर इस मेथड को मुझे ओवरराइडिंग नहीं करवाना है तो पेरेंट क्लास में ही इस मेथड को मुझे फाइनल डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। वंस आई डिक्लेयर दिस एज अ फाइनल, वी आर रेस्ट्रिक्टिंग ओवरराइडिंग, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सेम मेथड डिक्लेयर करूँ, ठीक है, तो ये ओवरराइडिंग नहीं होगा, ठीक है। कैनॉट ओवरराइड फाइनल मेथड फ्रॉम पेरेंट, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं होता है वेन एवर यू आर मेकिंग योर मेथड एज फाइनल, overriding of final method is not allowed, ठीक है। बट इसको अगर आपको कॉल करना है, आप नॉर्मल पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कॉल कर सकते हो। कॉलिंग इज सेम, आप मेथड को कॉल कैसे भी कर सकते हो, सिर्फ उसका ओवरराइडिंग नहीं होगा। मतलब आपने पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, न्यू पेरेंट पी डॉट शो भी आप क्रिएट कॉल कर सकते हो, एंड पी डॉट कैलकुलेट स्क्वायर भी आप कॉल कर सकते हो। दोनों में मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट ऐड करती हूँ, क्योंकि दोनों मेथड्स वैल्यूज रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, सो यू कैन सी दिस इज अ मेथड ऑफ पेरेंट क्लास, शो मेथड पेरेंट क्लास का ही एक्सेस हुआ है, एंड कैलकुलेटेड वैल्यू ये वाली हुई। चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट अगर आपने क्रिएट किया तो शो मेथड को आप कॉल कर सकते हो, डॉट शो डॉट प्रिंटलन एंड सिस्टम डॉट प्रिंटलन एफ डॉट कैलकुलेट स्क्वायर, जो आपका ऑलरेडी डिफाइंड है पेरेंट में, तो आप उसको कॉल कर सकते हो, बिकॉज पेरेंट के मेंबर्स तो हमें चाइल्ड में एक्सेसिबल है, राइट? सो दैट इज वाई वो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। मेथड अभी शो मेथड जो है वो चाइल्ड क्लास का इम्प्लीमेंटेशन आपको दे रही है, बिकॉज वी हैव ओवर रिडन दैट मेथड, ठीक है। सो फाइनल मेथड है, तो आपको ओवर राइडिंग आपको रेस्ट्रिक्ट करना है, तो उस मेथड को आपको फाइनल बनाना, ठीक है। मेथड भी आप फाइनल स्टैटिक बना सकते हो, ठीक है, जैसे ये स्टैटिक वेरिएबल है वैसे ही आप इस मेथड को, अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन चेंज नहीं होगा। अभी के लिए ये जो मेथड है वो इंस्टेंस मेथड है, राइट? ये इंस्टेंस मेथड है। इंस्टेंस मेथड है मतलब आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करोगे उन सबके लिए इस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन सेम रहेगा। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस एज अ और क्रिएटिंग दिस एज अ इंस्टेंस मेथड, you can simply create this method as static final method, ठीक है। सो दैट आपका इंस्टेड ऑफ हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेशन होने की जगह पे आप उस मेथड को बनाओ एज अ
क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड, ठीक है। सो उसको अगर हमने स्टैटिक बनाया, ऑलवेज यूज फाइनल कीवर्ड फर्स्ट देन द स्टैटिक कीवर्ड, ठीक है। तो इसका मेमोरी एलोकेशन एक ही बार होगा एंड इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम रहेगा। अभी ये स्टैटिक मेथड है तो इसको कॉल आप डायरेक्टली पेरेंट क्लास के नेम से कर सकते हो, ठीक है। तो इसको कॉल आप डायरेक्टली पेरेंट क्लास के नेम से कर सकते हो। दिस इज अ क्यू बिकॉज इट इज अ स्टैटिक मेथड, ठीक है। स्टैटिक मेथड है, इसकी वजह से आप पेरेंट क्लास की क्लास नेम से उसको एक्सेस कर सकते हो। नो नीड ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, okay. This is all about final method. Now the same related to the final classes. Last point from the final keyword, you can apply keyword final to the classes also. Final class including main method. Class create किया है, suppose the class name is sing. Okay. It has few members. इसकी कोई जरूरत नहीं, that is not important, ठीक है। कुछ members रहेंगे and normally you can inherit that class in any other class, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड यूज करके सिंग क्लास को कभी भी इनहेरिट कर सकती हूँ, बट आई डोंट वांट दिस क्लास टू बी इनहेरिटेड। मुझे रेस्ट्रिक्शन देना है इस क्लास को, इनहेरिटेंस से बचाना है, इस क्लास के कोई भी सब क्लासेस क्रिएट नहीं होने चाहिए। देन आई विल मेक दिस क्लास एज फाइनल क्लास। तो ये सिंगल क्लास होगा एंड यू कैन नॉट एक्सटेंड दैट क्लास हियर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटेंड के वर्ड के बाद कभी भी हम इस क्लास को नहीं कर सकते एक्सटेंड, ठीक है। एक्सटेंड हम नहीं कर सकते कोई भी क्लास को, so this class will be cannot be extended। जब भी आपको इनहेरिटेंस प्रोहिबिट करना है, रेस्ट्रिक्ट करना है, तब आप दैट पर्टिकुलर क्लास को फाइनल बना सकते हो। वी हैव वन फाइनल क्लास दैट इज नेम्ड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्लास जो है वो फाइनल क्लास है जिसको हम इनहेरिट नहीं कर सकते, जैसे तो स्टैंड अलोन क्लास, ठीक है। तो ये एक क्रिएट किया हुआ फाइनल क्लास है जिसको आप इनहेरिट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट क्रिएट सब क्लासेस ऑफ फाइनल क्लास, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे क्लासेस है जावा में जो फाइनल बनाए गए हैं जिसको हम इनहेरिट नहीं कर सकते, okay। So this is all about final keyword. Any doubt in this? Clear and Yes, ma'am. okay. So we have completed your module 10 with inheritance and uh, पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट्स, ठीक है। सारे हमने पूरा इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट इसमें क्लियर किया है। पूरे मॉड्यूल 10 में कुछ डाउट है? No, ma'am. नाउ वी विल गो बैक टू योर मॉड्यूल 9 जिसमें मैंने बोला था कि आपका मॉड्यूल 10 में से इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट कंप्लीट होने के बाद ही हम एब्स्ट्रैक्शन कंसेप्ट पे जा सकते हैं। एनकैप्सुलेशन कंसेप्ट हमने ऑलरेडी देखे हैं, बट अभी एब्स्ट्रैक्शन कंसेप्ट के लिए आपको इनहेरिटेंस क्या होता है, ओवरराइडिंग ऑफ अ मेथड क्या होता है, वो जानना बहुत जरूरी था। तो वो अभी हमने कंप्लीट कर लिया है पार्ट, राइट। नाउ वी विल सी एब्स्ट्रैक्शन कंसेप्ट्स इन जावा, ठीक है। वन सेकेंड, हमने नेस्टेड क्लासेस कंप्लीट किए हैं, राइट, ओके। सो नेस्टेड क्लासेस का भी हमने कंप्लीट कर लिया है आपका। डायरेक्टली एब्स्ट्रैक्शन कंसेप्ट से हमें अभी स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज द लास्ट पिलर ऑफ द ओप्स
जो हम अभी देख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है एब्स्ट्रैक्शन। हमने एनकैप्सुलेशन देखा, इनहेरिटेंस देखा, पॉलीमॉर्फिज्म देखा, तीनों हमारे पिलर्स हो चुके हैं। अभी लास्ट वाला बाकी है, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, बेसिकली हम अननेसेसरी डिटेल्स को हाइड करते हैं एंड इम्पोर्टेंट डेटा ही शो करते हैं, राइट। इट रिड्यूसेस कॉम्प्लेक्सिटी। हमने अननेसेसरी डिटेल्स को हाइड किया, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही सिर्फ हम यूजर को दिखा रहे हैं। दैट मीन्स वी आर रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इट। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी हम यहाँ पे रिड्यूस कर रहे हैं। सिस्टम जो है वो इजी होगी, अंडरस्टैंडेबल होगी एंड यूज करने के लिए भी बहुत इजी होती है। एब्स्ट्रैक्शन यूज करने का और एक फायदा है, दैट इज इट इम्प्रूव्स कोड रीडेबिलिटी। कोड का जो रीडेबिलिटी पर्पज है, मतलब आप कोड को इमीडिएटली रीड कर सकते हो कुछ भी विदाउट प्रॉब्लम। इट फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स हाई लेवल बिहेवियर विदाउट गेटिंग बॉक्ड डाउन बाय इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। तो ये ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्ट के बिहेवियर पे ध्यान देते हैं, इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन आप कैसे कर सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड होता है इन एब्स्ट्रैक्शन कंसेप्ट। इसके साथ साथ ये मेंटेनेबिलिटी भी एनहांस करता है। कोई चेंजेस करने हैं आपको, तो मॉडिफिकेशंस करने हैं, एनकैप्सुलेट करना है, तो वो आप कर सकते हो जो बाकी के पार्ट्स को अफेक्ट किए बिना सिस्टम के, आप डायरेक्टली कर सकते हो। देन इट फैसिलिटेट्स कोड रीयूज। कोड रीयूज इसमें बहुत सारा होता है, क्योंकि इसको हम रीयूज करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एप्लीकेशन और इन इन इवन डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑल्सो। ठीक है, डिफरेंट एप्लीकेशंस में भी आप इसको यूज कर सकते हो कंपोनेंट्स। सो जावा में एब्स्ट्रैक्शन हम अचीव करते हैं दो तरीके से। फर्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, सेकंड वन इज इंटरफेसेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को हम हमेशा पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं एंड इंटरफेसेस को फुल एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, दैट वी विल सी। So first of all, you need to understand for before going forward with the abstract classes. Abstract classes क्या होते हैं, ये समझने से पहले आपको समझना होगा कि abstract method क्या होता है, उसके कुछ rules होते हैं, वो क्या होते हैं, and then you will be able to understand the concept abstract classes. ठीक है, तो सबसे पहले abstract method क्या होता है। abstract method वो होती है जिसमें हम कभी भी बॉडी नहीं देते, जिसको हम क्लास में डिफाइन तो करते हैं। वी आर डिफाइनिंग द मेथड इन अ क्लास, डिक्लेयर किया है मेथड को, बट सिर्फ नेम डिक्लेयर किया है विदाउट बॉडी। ठीक है, सो ये सिर्फ एक एक्ट करता है प्लेस होल्डर के जैसे एंड इसको इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड किया जाता है सब क्लासेस में। ठीक है, तो ये इनहेरिटेंस में ही पॉसिबल होता है एब्स्ट्रैक्शन कंसेप्ट यूज करना। ठीक है, कभी भी एब्स्ट्रैक्शन कंसेप्ट है मतलब वो इनहेरिटेंस के साथ ही यूज होता है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमेशा इंप्लीमेंट होती है सब क्लासेस में। एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो होती है जिसमें कोई बॉडी नहीं होती, सिर्फ इट हैज अ सिग्नेचर। एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करने का ये सिंटैक्स है। एक्सेस मॉडिफायर आपको देना है। एब्स्ट्रैक्ट इज अ कीवर्ड, जो नॉन एक्सेस मॉडिफायर है उसको यूज करना है। रिटर्न टाइप देना है, मेथड नेम देना है एंड देन द पैरामीटर लिस्ट व्हाट एवर यू वांट टू गिव। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड सी। समटाइम्स द सुपर क्लास हैज नो मीनिंगफुल इम्प्लीमेंटेशन फॉर एनी मेथड। अगर सुपर क्लास में कोई मीनिंगफुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है एंड आपने ऐसे ही उस मेथड को वहां पे इम्प्लीमेंट किया है जिसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ओवरराइडिंग करके आप उसको चाइल्ड क्लास में उसके मेथड का इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर रहे। सो सच मेथड जिसका कोई मीनिंगफुल इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है सुपर क्लास में, such method rather than giving the implementation to it, you can declare that method as abstract. So later in future the subclasses of that particular superclass can implement that method as per their need. ठीक है, तो वो मेथड इंप्लीमेंट कर सकते जैसे उनकी नीड होगी उसके हिसाब से सब क्लासेस में। एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर आपने डिक्लेयर किया है, मैं ठीक है, मेथड आपने एक क्लास में एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर किया है, तो उस क्लास को
हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना पड़ता है. सो दैट मीन्स if at least one method is declared as an abstract, the class must also declared as an abstract. ठीक है, तो उस क्लास को भी आपको abstract ही डिक्लेयर करना पड़ता है. तो हम एक एग्जांपल देखेंगे. मैंने एक क्लास क्रिएट किया है यहाँ पे. सपोज दैट क्लास नेम इज एनिमल. इस क्लास में अभी मुझे इम्प्लीमेंटेशन देना है. सॉरी, एक मेथड डिक्लेयर करनी है. सपोज दैट मेथड इज void डिस्प्ले मेथड. बट अभी जो void डिस्प्ले मेथड है या फिर डिस्प्ले बेनिफिट करके मैं मेथड बनाती हूँ, तो अभी सारे एनिमल्स की बेनिफिट्स मुझे उसके जो एनिमल रहेगा उसके अकॉर्डिंगली उस पर्टिकुलर क्लासेस में डिफाइन करना है. देयर इज नो मीनिंगफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिस्प्ले बेनिफिट मेथड हियर इन दिस एनिमल क्लास. मुझे यहाँ पे कोई भी इम्प्लीमेंटेशन, ऐसा कुछ मीनिंगफुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं लग रहा है. तो मैं इस क्लास में ये जो मेथड है उसका सिर्फ और सिर्फ बॉडी पार्ट रिमूव करके सिर्फ सिग्नेचर रख रही हूँ. मतलब सिग्नेचर इज नथिंग बट रिटर्न टाइप, नेम ऑफ अ मेथड एंड द पैरामीटर लिस्ट. ठीक है, सो ये आपका सिग्नेचर है. तो ये इसको मुझे इम्प्लीमेंटेशन नहीं प्रोवाइड करना है. दैट्स व्हाई आई एम एडिंग सेमीकोलन हियर. सेमीकोलन ऐड किया, दैट मीन्स हम सिर्फ इसको डिक्लेयर कर रहे हैं. अभी इसको डिक्लेयर कर रहे हैं तो ये बाय डिफॉल्ट ऐसे डिक्लेरेशन नहीं होता है जावा में. तो आपको इस मेथड को डिफाइन करना पड़ेगा एज एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट मीन्स nothing but we are not defining any implementation to that particular method. ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैंने एनिमल क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन किया यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के थ्रू इसको हमने डिफाइन किया. अभी जैसे हमने देखा कि क्लास में अगर एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो उस क्लास को भी आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना पड़ता है. ओके, so this class needs to be declared as abstract class because it has one or more, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, but at least one method abstract है. That's why इस क्लास को हमें abstract बनाना पड़ेगा. ठीक है, using abstract keyword you need to make this class as abstract. अभी यहाँ पे ये partial abstraction है. क्यों? क्योंकि इस animal class में आप कोई कंक्रीट मेथड भी डिफाइन कर सकते हो. कंक्रीट मेथड इज नथिंग बट विच हैज अ बॉडी. ठीक है, सपोज द मेथड इज शो. शो मेथड मैंने डिफाइन किए हैं यहाँ पे. सिस्टम आउट ऑफ प्रिंटलन, शो ऑफ एनिमल क्लास. ठीक है, तो ये कंक्रीट मेथड है. कंक्रीट मेथड इज ऑलवेज एज अ बॉडी. ठीक है, जिसको बॉडी है तो हम इसको कंक्रीट मेथड बोलेंगे और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलेंगे. ठीक है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट मेथड. ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है. नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में लिख सकते हैं. सो दैट इज व्हाई ये पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन है. क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैज कंक्रीट मेथड्स आल्सो एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स आल्सो. अगर एक भी आपकी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो आपको क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही बनाना पड़ता है. नाउ हु विल गिव द इम्प्लीमेंटेशन टू दिस पर्टिकुलर मेथड? ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसको बॉडी नहीं है. इसको बॉडी नहीं है तो वो कौन डिफाइन करेगा बॉडी? तो एनिमल क्लास का चाइल्ड क्लास जो भी होगा, जितने भी चाइल्ड क्लासेस हैं उनको कंपलसरी इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना होता है. सो फर्स्ट वी विल सी फ्यू रूल्स. ठीक है, कुछ क्लास एंड मेथड्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो वो हम देखते हैं. Abstract classes are also known as partial abstraction as they may contain
concrete methods means the methods those have body. ठीक है, बॉडी है तो उसको हम कंक्रीट मेथड्स बोलेंगे, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन. हमेशा एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करना है. एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ ही डिक्लेयर करना है. इस मेथड को सिर्फ डिक्लेरेशन होगा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, मतलब बॉडी नहीं है. जावा एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस मे और मे नॉट कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स. एक भी मेथड आपने नहीं दी है तो भी आप क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हो, बट अगर एक मेथड आपने दी है तो उसको कंपलसरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना पड़ता है. ठीक है, दो अलग अलग स्टेटमेंट्स है, वो ध्यान में रखो. जैसे कि यहाँ पे बोला कि इफ एटलीस्ट वन मेथड इज डिक्लेयर्ड एज एन एब्स्ट्रैक्ट, द क्लास मस्ट ऑल्सो डिक्लेयर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास. एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपने डिक्लेयर की तो क्लास को आपको एब्स्ट्रैक्ट बनाना ही पड़ता है कंपलसरी. बट एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आपने डायरेक्टली क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाया है तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स नहीं होंगे तो भी चलेगा. ठीक है, उसमें सिर्फ कंक्रीट मेथड्स ही है तो भी चलेगा. यू आर डिफाइनिंग दैट क्लास एज एब्स्ट्रैक्ट एक्सटर्नली, आप उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हो. तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास मे और मे नॉट हैव ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स. ठीक है, सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स नहीं होते, सारे हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, उसमें से कुछ कंक्रीट भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते. ठीक है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है. If a class has at least one abstract method, then the class must be declared as abstract. ठीक है, ये कंपल्सरी है. If a class is declared abstract, it cannot be instantiated. Instantiated मतलब आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते. मतलब अभी जो हमने ये एनिमल क्लास एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन किया है, तो आप एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट डायरेक्टली नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि उसमें आपने कंस्ट्रक्टर भी दिया तो भी इसको हम इंस्टेंशिएशन नहीं प्रोवाइड कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें एक अधूरी मेथड है. इस मेथड का कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ये पूरा पार्ट नहीं है, ये आधा ही पार्ट है. तो इसको मेमोरी एलोकेशन कैसे होगा? आप इसको इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि ये अधूरा पार्ट है. ये क्लास हमने अधूरा बनाया है, ये बता रहे हैं हम कंपाइलर को कि ये अधूरा पार्ट है. इसको पूरा पार्ट होगा कब होगा? जब हम इस क्लास का इनहेरिटेड क्लास क्रिएट करेंगे, चाइल्ड क्लास क्रिएट करेंगे, तभी इस मेथड को इम्प्लीमेंटेशन मिलेगा. एंड बेस्ड ऑन दैट इम्प्लीमेंटेशन मेमोरी एलोकेशन होगा. ठीक है, सो दैट इज व्हाई ये अधूरा क्लास होने की वजह से एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते. नॉट एबल टू क्रिएट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, जैसे हम डायरेक्टली कर सकते थे वैसे आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते. ओके, जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन करते हो तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसका क्रिएट नहीं कर सकते. To use an abstract class, you have to inherit it from another class and provide implementation to abstract methods in it. ठीक है, उसके साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट क्लास आप ब्लैंक भी रख सकते हो, मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, ब्लैंक क्लास है, नो मेंबर्स, मेथड्स नहीं है, वेरिएबल्स नहीं है, कुछ नहीं है. The abstract methods in abstract class must be explicitly defined as abstract. Explicitly defined as abstract मतलब हम abstract कीवर्ड ऐड कर रहे हैं आपके क्लास में जो मेथड है जिसको हमें बनाना है एब्स्ट्रैक्ट उसको. ठीक है, एक्सप्लिसिटली हम इसको एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हैं. अभी यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट करती हूँ जो आपका चाइल्ड क्लास होगा. सपोज दैट क्लास इज टाइगर क्लास विच एक्सटेंड्स एनिमल क्लास. ठीक है, जैसे ही आप ये लिखते हो इमीडिएटली इट विल आस्क यू फॉर इम्प्लीमेंटिंग द अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स. जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है उसको इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए वो इमीडिएटली आपको प्रॉम्प्ट करेगा. तो आप यहाँ पे बता सकते हो. मैंने एक इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया. So, इस मेथड को आपको ओवरराइड करना है आप कर सकते हो, नहीं करना है मत करो, डोंट वरी अबाउट इट. बट अगर आपने एनिमल एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट किया तो यू आर रेस्पॉन्सिबल, दैट चाइल्ड क्लास इज रेस्पॉन्सिबल to provide implementation to the abstract method.
अभी इस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को आप कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर दे सकते हो एक्सेप्ट प्राइवेट। प्राइवेट क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि अगर आपने मेथड प्राइवेट बनाई, अगर इस मेथड को मैंने प्राइवेट डिफाइन किया, तो यू कैन नॉट एक्सेस दैट मेथड आउटसाइड ऑफ दिस क्लास। प्राइवेट मेंबर्स तो उसी क्लास में डिफाइंड होते हैं, उसी क्लास में एक्सेस होते हैं, राइट? तो वो उसको हम दूसरे क्लास में एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर हमने प्राइवेट बनाया तो चाइल्ड क्लास में उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे प्रोवाइड करेंगे, राइट? दैट इज वाई जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो कभी भी प्राइवेट नहीं होती। बाकी एक्सेस मॉडिफायर्स आप सारे दे सकते हो, मतलब प्रोटेक्टेड दे सकते हो, डिफॉल्ट एंड पब्लिक। इस क्लास में इंस्टेंस वेरिएबल्स, स्टैटिक वेरिएबल्स, फाइनल वेरिएबल्स, कंस्ट्रक्टर्स वगैरह सब कुछ आप डिफाइन कर सकते हो। इट इज लाइक अ नॉर्मल क्लास बट ओनली विथ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, ठीक है? अभी इंस्टेंस हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का डायरेक्टली नहीं कर सकते, बट हम क्रिएट कर सकते हैं थ्रू सब क्लास। बट वी कैन क्रिएट द रेफरेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जैसे अपकास्टिंग कंसेप्ट में देखा था हमने। वैसे ही आप एक तो डायरेक्टली आप टाइगर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, t is equals to new tiger and t dot display benefit, t dot show मेथड को आप कॉल कर सकते हो, ठीक है? एज इट इज अ पेरेंट मेंबर आप उसको भी कॉल कर सकते हो, राइट? सो ये आप एक तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएशन कर सकते हो थ्रू दी चाइल्ड क्लास, या फिर एनिमल क्लास का रेफरेंस क्रिएट कर सकते हो एंड इनिशियलाइजेशन कर सकते हो थ्रू चाइल्ड क्लास यूजिंग द अपकास्टिंग कंसेप्ट। हमने देखा अपकास्टिंग कंसेप्ट, ठीक है? एंड देन यू कैन एक्सेस द मेंबर्स a डॉट डिस्प्ले बेनिफिट एंड a डॉट शो मेथड। अभी ये मेथड एक्सेसिबल रहेगी, बट यहाँ पे डायनेमिक मेथड डिस्पैच के हिसाब से आपको, डायनेमिक मेथड डिस्पैच कंसेप्ट हमने देखा, उसके हिसाब से आपको टाइगर क्लास का इम्प्लीमेंटेशन मिलेगा। ठीक है, ये मेथड हमने ऑलरेडी डिक्लेयर की है यहाँ पे एनिमल क्लास में। दैट इज वाई उसका डायनेमिक मेथड डिस्पैच के हिसाब से आपको डिस्प्ले बेनिफिट टाइगर क्लास में जो चाइल्ड क्लास है उसमें से इम्प्लीमेंटेशन जो भी आपने किया है वो आपको दिखाई देगा। ओके, सो दिस इज हाउ द इनहेरिटेंस कंसेप्ट इसमें कैसे आते हैं, क्यों पहले हमने देखा, वो आपको समझ में आ गया होगा। All abstract methods of abstract class must be overridden in its subclass. Either or the subclass must be declared as an abstract if it does not want to implement all abstract methods of its superclass. मतलब कि ये जो क्लास है एनिमल क्लास, सपोज मैंने और एक चाइल्ड क्लास इसका क्रिएट किया, क्लास है वुल्फ, ठीक है, विच एक्सटेंड्स एनिमल क्लास। बट इस वुल्फ क्लास में मुझे डिस्प्ले बेनिफिट मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं करवाना है, ठीक है? आई डोंट वांट टू इम्प्लीमेंट। अगर मैंने ऐसे किया तो वो एरर दिखाते रहेगा, आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंटेशन देना है। बट आई थॉट दैट आई डोंट वांट टू गिव द इम्प्लीमेंटेशन टू दिस डिस्प्ले बेनिफिट मेथड हियर इन द वुल्फ क्लास। देन एज यू नो, ये मेंबर्स जो है वो बाय डिफॉल्ट आपके पेरेंट के मेंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे। मेंबर्स आर accessible in child directly, ठीक है? डायरेक्टली तो वो एक्सेसिबल यहाँ पे आ ही जाएंगे, बट आई डोंट वांट टू। तो जो मेंबर है आपका एब्स्ट्रैक्ट मेंबर, वो भी एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। ये शो मेथड का इम्प्लीमेंटेशन तो एज इट इज रहेगा, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो एज इट इज यहाँ पे आपकी रहेगी एज एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है? पेरेंट मेंबर चाइल्ड में आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। अगर मैंने सोचा कि इस मेथड को मुझे इम्प्लीमेंटेशन नहीं देना है, एक तो आप इम्प्लीमेंटेशन दो ओवरराइड करके उस मेथड को, या फिर नहीं देना है तो इस क्लास को भी आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना पड़ेगा। क्यों एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना पड़ेगा? क्योंकि ये मेथड एज इट इज यहाँ पे रहेगी विदाउट बॉडी, ठीक है? सो अभी इसको कौन इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेगा? अब ये एनिमल क्लास का है, चाइल्ड क्लास है,
जिसको इम्प्लीमेंटेशन देना चाहिए था बट उसने दिया नहीं, तो कौन देगा? देन चाइल्ड क्लास ऑफ दिस क्लास, वुल्फ क्लास, इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन। मतलब मैंने अगर यहाँ पे और एक क्लास क्रिएट किया, वुल्फ वन, विच एक्सटेंड्स वुल्फ क्लास, then in this class you need to provide the implementation to the display benefit method। ठीक है, तो अगर आपने ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास एज इट इज रखा चाइल्ड क्लास को, जो स्टेटमेंट यहाँ पे था, और the subclass must be declared as an abstract if it does not want to implement all abstract method of its superclass। ठीक है, तो अगर ये है तो आपको, आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया उस चाइल्ड क्लास को, तो उसका चाइल्ड क्लास जो होगा वो रेस्पॉन्सिबल होगा आप इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए। अभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम कभी भी फाइनल नहीं बना सकते, या फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को भी हम कभी फाइनल नहीं बना सकते, क्योंकि फाइनल क्लास, अभी हमने देखा फाइनल कीवर्ड का यूज जो होता है, फाइनल कीवर्ड अगर हमने इसको ऐड किया तो आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड नहीं कर पाओगे, एंड अगर क्लास को बनाया तो इस क्लास का चाइल्ड क्लास नहीं कर पाओगे। बोथ आर नॉट रिकमेंडेड। क्यों नहीं है? वो होगा ही नहीं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हमेशा हमें इनहेरिट करना ही पड़ता है, एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हमेशा हमें ओवरराइड करना ही पड़ता है। दैट इज वाई दोनों के लिए हम फाइनल कीवर्ड कभी अप्लाई नहीं करते हैं। A class cannot extend more than one abstract class, but Java does not support, because Java does not support multiple inheritance through classes। ये तो हमने देखा हुआ है। That's why एक टाइम हम एक ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इम्प्लीमेंटेशन, एक ही क्लास को कर सकते हैं। ये एग्जांपल है, शेप क्रिएट किया है, सर्कल क्रिएट किया है, एंड रेक्टेंगल क्रिएट किया है, जिसमें एरिया मेथड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट रखी है। अकॉर्डिंग टू द शेप यू कैन इम्प्लीमेंट दैट मेथड, राइट। बाकी के जो मेथड है वो भी हमने यहाँ पे लिखी है। ये एग्जांपल आप एज अ होमवर्क करोगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन कंसेप्ट हमने देखा। ठीक है, क्लियर है? एनी डाउट? कुछ डाउट है? No, ma'am. ठीक है, so we will end our session for today here, and we will continue with the interfaces concepts, that is a fully abstraction concept, in the next session। अगर एब्स्ट्रैक्शन में कुछ डाउट रहेगा तो आप कभी भी पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू। Thank you, ma'am.